Good morning, students. Today I am going to start with the next topic under your chapter 2 business studies form of organization, that is cooperative society. Up till now we have seen three forms of organization: sole proprietor, partnership and Hindu undivided family. So this is the fourth form of organization, that is a cooperative society. As the word itself suggests, cooperative means working together. You are working together so that you can achieve some common purpose. And what is that common purpose? The common purpose is welfare of the members who are the members of the society. So what do you understand by cooperative society? It is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. So it is nothing, cooperative society is nothing but it is an association of the person who are joining this society with a motive to protect the welfare, to protect the interest of the members. Now who can be the members of the society? Any consumer or the producers, they can become the member of the society. So here the common purpose is to protect the interest of the welfare of the members of the society. And the main aim, it is the association of the person and not a capital. Then it is compulsorily required to register this cooperative society under the Cooperative Societies Act 1912. Moreover, if you want to become members or if you want to form the cooperative society, minimum of 10 adult persons are required to form a cooperative society, and whatever capital is being contributed by this member, it is in the form of issues of shares. So here the society, it will acquire a distinct legal identity which is separate from its member as soon as it's registered itself. So unlike all the three forms of organization that we have seen earlier, cooperative society is compulsory to be registered. Now the examples of cooperative society, like you might have heard about Amul Dairy. So Amul Dairy is one of the largest Indian cooperative societies. Similarly, IFFCO, that is Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. It is also one of the cooperative society which is working for the welfare of the farmers. So these two are the examples of the cooperative society. So let us see what are the features, merits and demerits of the cooperative society. Now the very first feature of the cooperative society is voluntary membership. That means here any person whose age group is 18 years or more and have the common interest to protect the welfare of the members can become the member. So here a person is free to join as well as to leave the society anywhere, anytime, whenever he wants by giving a notice. No one can force to join the association or to continue as the member. तो यहाँ पे किसी भी तरह का discrimination नहीं होता है, जो चाहे वो member बन सकता है. There is no discrimination on the basis of religion, caste or gender. Anyone who wishes can join the society. Similarly, anyone who wishes can leave the society. उनके ऊपर कोई भी compulsion नहीं है, compulsory नहीं है. As the name itself suggests, it is voluntary. जब चाहो तब. The second feature of cooperative society is legal status. As I have told earlier that it is compulsory to register the cooperative society under Cooperative Societies Act 1912. So as soon as it gets registration, it becomes a legal entity which is distinct from its member. Now legal entity distinct from its member का मतलब क्या है? member की अलग identity होगी and आपकी सोसाइटी की अलग आइडेंटिटी होगी. जैसे आपने आपके अकाउंट्स में ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा होगा, जहाँ पे लीगल एंटिटी इज डिफरेंट, दैट इज रिलायंस इज डिफरेंट एंड धीरूभाई अंबानी ही इज डिफरेंट. तो वो दोनों अलग आइडेंटिटी होते हैं. एंड जैसे ही आप रजिस्टर करवाते हो, दी सोसाइटी गेट्स दी लीगल स्टेटस. इसका मतलब क्या है? वो खुद के नाम पे, सोसाइटी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है या अपने नाम पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. इट कैन सुई और इट कैन बी सुइड ऑन इट्स ओन नेम. सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट्स ऑफ इट्स मेंबर. कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम हमेशा जैसे अमूल डेयरी लीगल एंटिटी को, इसको एक लीगल एंटिटी है अमूल डेयरी और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी अलग आइडेंटिटी. यू कैन नॉट मिक्स दी आइडेंटिटीज ऑफ अमूल डेयरी विद दी मेंबर्स. एंड तो उसकी एक सेपरेट, तो अमूल डेयरी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर सकती है, वो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं या उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है. देन द नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी. Limited liability, as we all know, limited liability of the members is limited to the extent of amount that is being contributed by them of the capital. तो हर एक members जो भी होगा उनकी liability will be limited. जिन्होंने उतना contribute किया होगा उतना तक का ही उनका liability रहेगी. Then as far as the control is concerned, यहाँ पे democratic pattern use किया जाता है. एक जो भी मेंबर्स है वो एक मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करती है थ्रू वन मैन वन वोट. ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है. सो जो भी डिसीजंस लेने होंगे, दी पावर रेस्ट इन दी हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी. हाउएवर जो भी मेंबर्स है, बाकी के मेंबर्स है, वो अपने सजेशंस, ओपिनियंस या वो प्रॉब्लम्स कमिटी के सामने
रख सकते हैं, लेकिन डिसीजन विल बी टेकन बाय द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी ओनली. एंड द लास्ट फीचर इज सर्विस मोटिव. ऑफ कोर्स द कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर फॉर्म विद द सर्विस मोटिव, नॉट विद द प्रॉफिट मोटिव. कोई भी अगर सरप्लस जनरेट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, it will be distributed among the members in the form of the dividend. Now what do you mean by dividend? Dividend is nothing but whatever return. जैसे यहाँ पे issues of shares के थ्रू आप members बनते हो, so they are also termed as the shareholders. So shareholders को जो return दिया जाता है, ठीक है, उनके capital के ऊपर whatever return they receive, it is termed as dividend. So these are the features of cooperative society. The merits, the very first merit is equality in voting status. That is, जैसे मैंने कहा कि principle of one man one vote is फॉलोड. तो ये गवर्न करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को. हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट होता है, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. सो देयर इज इक्वालिटी इन दी वोटिंग स्टेटस. अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट दैट द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इट इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल विच इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय हिम. तो उसको पता होता है कि उसको जो भी अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसके ऊपर कितने अमाउंट तक का रिस्क होगा. उनके पर्सनल एसेट्स मेंबर्स के सेफ रहेंगे और कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता. देन स्टेबल एग्जिस्टेंस, दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स. यानी अगर कोई मेंबर मर जाता है तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी भी बंद हो जाएगी, सोसाइटी विल बी कंटिन्यू. सो देयर इज अ स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इट मीन्स कि ये जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट इज मैनेज बाय द मेंबर्स. सो यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता. जो मेंबर्स होता है वो भी जो काम करना है वो सारे के सारे मेंबर्स ही करते हैं. सो ये मेंबर्स कौन हो सकते हैं? तो इट कैन बी एनी कस्टमर और इट कैन बी एनी प्रोड्यूसर. दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, दैट वी विल सी इन अवर अपकमिंग सेशन. सो यहाँ पे आपके जो कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं वही मेंबर्स होते हैं. सो देयर इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन. कोई भी किसी भी तरह का बैड डेट्स नहीं होगा. देन कम सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज यूजुअली वर्किंग ऑन डेमोक्रेटिक पैटर्न. तो जो भी गवर्नमेंट के पास से उसको एग्जम्पशंस, प्रिविलेजेस, कंसेशंस मिलते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्स सब्सिडीज और लो इंटरेस्ट रेट्स. देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, अगेन एनीवन, इफ अगर 10 एडल्ट मेंबर आपके पास अवेलेबल है तो दी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड इजीली. इट कैन स्टार्टेड वेरी इजीली. सिमिलरली जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें इन्वॉल्व है वो बहुत ही कम है. इट इज गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. तो दी लीगल प्रोसीजर इज वेरी मच लेस, सो देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन. नाउ लेट अस सी डीमेरिट्स. लिमिटेड रिसोर्सेज, अगेन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट फेसेस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज इट इज रन बाय द मेंबर्स जिनके पास लिमिटेड मीन्स है. मोर ओवर आपका जो शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को जो डिविडेंड मिलता है इट इज वेरी लेस. सो आप नए मेंबर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते और नए मेंबर्स नहीं आते हैं तो नए कैपिटल भी आपको मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. देन इन एफिशिएंसीज ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे सोसाइटीज में मेंबर्स ही सारे डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मैनेजिंग कमिटी उन्होंने बनाई है वो लोग ही सारे डिसीजंस लेते हैं. तो यहाँ पे आप कभी भी एम्प्लॉयज एक्सपर्ट्स को आप नहीं रख सकते हो क्योंकि आप उनको हाई सैलरीज पे करने की इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आप ये वेलफेयर मोटिव से काम कर रहे हो, प्रॉफिट मोटिव से नहीं. तो बट ऑब्वियस है जो भी पैसा मिलता है आप उसको खर्चा करते रहते हो सोसाइटी के ऊपर ही. सो यहाँ पे इट इज नॉट जो प्रोफेशनल की जरूरत है, ठीक है, वो प्रोफेशनलिज्म आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता. सो देयर इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. अगेन लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज जैसे बार बार आपको मीटिंग करनी पड़ती है तो मीटिंग्स में लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब सीक्रेसी मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बिकॉज जब भी मीटिंग होती है ईच एंड एवरी मेंबर आर टू कंपल्सरी अटेंड दिस मीटिंग. सो कोई भी अगर आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो इट इज नोन टू ऑल दी मेंबर्स. सिमिलरली अगर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं सोसाइटीज के, ईच एंड एवरी मेंबर आर फ्री टू चेक दी बुक्स ऑफ अकाउंट. और कभी भी सपोज वो मेंबर्स का कभी किसी के साथ लड़ाई हो जाता है सोसाइटी में और वो छोड़ के बाहर निकलता है तो उसके पास सीक्रेसी मतलब उसको बहुत सारी अंदर की बातें पता होती है सोसाइटी की, तो वो बाहर जाके बता सकते हैं, मे बी इन मीडियाज या प्रेस में या फिर किसी और कंपनीज को. सो लैक ऑफ सीक्रेसी इज नॉट मेंटेन अंडर योर कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन गवर्नमेंट कंट्रोल. अब गवर्नमेंट आपको प्रिविलेजेस दे रही है, ठीक है, बहुत सारे कंसेशंस मिल रहे हैं टैक्स और सब्सिडी के फॉर्म में, तो आपको गवर्नमेंट को बदले में कुछ देना पड़ेगा. तो व्हाट इज दैट? इट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी दे आर बाउंड बाय रेगुलेशंस, रूल्स, ऑडिटिंग के रिलेटेड, सबमिशंस ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड. सो गवर्नमेंट कीप्स ऑन इंटरफियरिंग by asking you various types of information. And last is difference of opinion.
अगेन इंटरनल कॉरल्स हो सकते हैं बिकॉज डिफरेंट पर्सन है तो डिफरेंट ओपिनियंस विल बी देयर, लैक ऑफ कॉपरेशन इज पॉसिबल. तो इसके वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग. सो these are the features, merits and demerits of cooperative society. Tomorrow I will be starting with types of cooperative society. Thank you.